Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਗੜਵਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਓਨਲੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ F ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ। ਬਟ ਇਹ ਫੋਰਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ F/m। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ f ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਾਲ f ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ F - F। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਕਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਰਫੇਸਿਸ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਟੂਵਰਡਸ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ ਲੈਫਟ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। It is an opposing force which comes into play whenever there is relative motion between two bodies. When one body moves or tends to move over the surface of other body. ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਅਰਥ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ N ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ
कई बार कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होंदा तो फिर उसका रिएक्शन भी परपेंडिकुलर नहीं होएगा। जो रिएक्शन परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच है तो उसनूं नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल का मतलब होंदा परपेंडिकुलर। क्लीयर। तो हुण असीं इत्थे एक थ्योरी दे रहे हैं फ्रिक्शन दे लई जिसनूं कहंदे कॉज ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन का कारण की है। ठीक है। फ्रिक्शन के कारण लई दो थ्योरीज दित्तियां गईयां। जो पहला समझिया जांदा सी उसनूं कहा जांदा सी ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू की कहते हैं जी फ्रिक्शन का की कारण है। कहते जिहड़ी सरफेस सानूं देखण नूं समूथ लगती है, बिल्कुल प्लेन लगती है, जे असीं उसनूं माइक्रोस्कोप नाल देखते हैं तो उनकी सरफेस इररेगुलर होंदी है। जिवें देखो ये दोनों सरफेसिस एक दूजे के उपर पईआं ना, तो एक्चुअल दे विच जिहड़ी उपरली बॉडी है इनकी जिहड़ी सरफेस है वो इस तरह की होएगी कि उहदे विच कुछ डिप्रैशनस होणगीआं, कुछ प्रोजैक्शनस होणगीआं। इस तरह जिहड़ी निचली सरफेस है उहदे विच भी कुछ प्रोजैक्शनस ते डिप्रैशनस होणगीआं। ठीक है। तो जिहड़ी इन्हां दोनों दी प्रोजैक्शनस ते डिप्रैशनस है, जिवें इहदे विच ये डिप्रैशन है सरफेस दे विच जिहदे विच उपरला बॉक्स मूव कर रहा है, तो उहदे विच ये प्रोजैक्शन है। ठीक है। तो प्रोजैक्शन ते डिप्रैशनस ये आपस दे विच इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इन्हां नूं एक बॉडी नूं मूव करने लई दूसरे दे उपर सानूं इन्हां इंटरलॉकिंग्स नूं ओवरकम करना पैंदा है। ठीक है। तो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग की है कि सरफेसिस आर रफनेस है। ठीक है। रफनेस इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन कि उहदे करके जो प्रोजैक्शनस ते डिप्रैशनस है दो सरफेसिस दियां वो आपस दे विच इंटरलॉक हो जांदियां। तो सानूं ये इंटरलॉकिंग ब्रेक करने लई, ओवरकम करने लई एक एनर्जी चाहिए है। ठीक है जी। ये ओल्ड व्यू है। बट ओल्ड व्यू बहुत बुरे तरीके नाल फेल हो जाता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ देखते हैं कि दो बहुत ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸਿਸ, ठीक है, एक दूजे के नज़दीक आਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ दो ਸਰਫੇਸਿਸ एक दूजे के बहुत क्लोज आ ਜਾਂਦੀਆਂ। ठीक है। तो जो ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸਿਸ क्लोज ਆਉਂਦੀਆਂ ना तो ਅਸੀਂ देखते हैं कि कई बार वो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा फोर्स ਨਾਲ चिपके ਆਉਂਦੀਆਂ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मूव करने ਲਈ कुछ एक्सट्रा ही फोर्स चाहिए होंदा है। ठीक है। तो फ्रिक्शन एक्चुअली इनक्रीज़ हो जाता है ਇਹੋ ਜਿਹੀ सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ। कई बार ग्लास की स्लैब भी ਅਸੀਂ देखते हैं कि दूसरी ग्लास की स्लैब ਦੇ ਨਾਲ जिस तरह चिपक गई होंगी है। ठीक है। उन्होंने मूव करने लगे सानू ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इत्थे हुण देखो प्रोजैक्शन ते डिप्रैशनस तो नहीं है, रफनेस नहीं है। तो इत्थे एक न्यू थ्योरी आती है जी, मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न व्यू असीं कहने हैं, जो एक्चुअल दे विच फ्रिक्शन का कॉज है। ठीक है। वो की है कि कहता जिहड़ियां दो सरफेसिस है ना उनदे विच जो एटम्स है वो बहुत क्लोज आ गए, एटम्स और मॉलीक्यूल्स, तो वो आपस दे विच बॉन्ड बना लेंदे हैं कि दोनों सरफेसिस आपस दे विच इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग हो जाती है। जिवें असीं पिछले चैप्टर दे विच गल कीती सी कि इसका जो ओरिजिन है वो भी इलैक्ट्रिक है। ठीक है। कि एटम्स दे विच मॉलीक्यूल्स दे विच अट्रैक्शन होंदी है ना जिस तरह, तो वही अट्रैक्शन है। ठीक है। इस व्यू के अकॉर्डिंग जो ओरिजिन है दैट इज़ इलैक्ट्रिकल इन नेचर। तो उन्होंने विच एक मॉलीक्यूलर अट्रैक्शन है बिटवीन द टू सरफेसिस, तो जिसनूं तुसीं बॉन्डिंग कह सकते हो। ठीक है। तो उनके करके दोनों सरफेसिस आपस दे विच जुड़ियां हुई सानूं लगदियां। तो जो असीं फोर्स अप्लाई करना पैंदा सानूं उस फ्रिक्शन नूं ओवरकम करन दे लई। ठीक है। तो हुण फ्रिक्शन किवें एक्ट करता है जी, जिवें असीं पहलां दस्सिआ है कि फ्रिक्शन जिहड़ा है वो दोनों सरफेसिस जिथे कॉन्टैक्ट दे विच है उत्थे एक्ट करता है, तो ओपोजिट डायरैक्शन दे विच एक्ट करता है, टेंजेंशियली एक्ट करता है। ठीक है। जो फ्रिक्शन है इसनूं असीं 3 टाइप्स दे विच डिवाइड करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करिए जे कि एक बॉडी है, फिर असीं वही एग्जाम्पल लैंदे आ कि उसनूं असीं मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इस दे उपर फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो असीं उसके उपर एफ फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। अप्लाइड फोर्स जिसकी वैल्यू असीं चेंज कर सकते हैं। इस फोर्स के नाल ये बॉडी मूव नहीं करती। ठीक है। इसका मतलब जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के नाल बैलेंस हो रहा है। ठीक है। बॉडी मूव नहीं कर रही, फ्रिक्शन है, तो उसनूं असीं स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। समझ लगी। फिर असीं फोर्स अप्लाई इनक्रीज़ करते हैं, अप्लाइड फोर्स इनक्रीज़ करते हैं, अजे भी बॉडी मूव नहीं कर रही। इसका मतलब जिहड़ा ये वाला फोर्स है वो भी इहदे नाल इनक्रीज़ हो रहा है। ठीक है ना। बट ये एक लिमिट तक इनक्रीज़ होंदा है, जो इहदी मैक्सिमम वैल्यू है जित्थों तक इनक्रीज़ होंदा है उहनूं कहंदे लिमिटिंग फ्रिक्शन।
तो ये वो वैल्यू होंगी है जिस जगह पर जाके बॉडी बस मूव करने वाली ही होंगी है, जिसनों असीं क्या करांगे ऑन द वर्ज ऑफ मूव, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूव। तो उदों जो फ्रिक्शन की वैल्यू होंगी है उसनों कहते लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फिर असीं जो अपना फोर्स इन्ना इनक्रीज़ कर दिंदे हैं कि बॉडी एक्चुअली मूव करन लग जाती है, तो उदों जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होंदा है उन्होंने कहते कनेटिक फ्रिक्शन। गल समझ लग गई? मतलब जे तो कोई अप्लाइड फोर्स जीरो है तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो है। जो असीं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी अजे मूव नहीं की, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब यही होंदा कि रुकिया होया, ठीक है ना, उदों जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो जो आप इनक्रीज़ करते हैं ये भी नाल इनक्रीज़ करता है, बट ये एक मैक्सीमम वैल्यू तक इनक्रीज़ करता है। ठीक है, उसनों कहते हैं जी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो बॉडी मूव करन लग पैंदी है कि असीं इन्ना फोर्स अप्लाई करता कि बॉडी एक्चुअली मूव कर रही है, तो उसनों कहते हैं कनेटिक फ्रिक्शन। तो कनेटिक फ्रिक्शन जिहड़ा ना थोड़ा जिहा लैस होंदा है लिमिटिंग फ्रिक्शन तो, क्योंकि असीं देखिया कि बॉडी नूं मूव करवाना औखा है, बट जो मूव करन लग जाती है तो उन्होंने मोशन दे विच रखण लई सानूं थोड़ी जी घट फोर्स लगानी पैंदी है। तो कनेटिक फ्रिक्शन इज़ लैस दैन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो जी असीं स्टैटिक फ्रिक्शन नूं किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट वैन एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टार्टड येट। जो मोशन स्टार्ट अजे नहीं होया तो उसनूं कहते हैं जी स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की होंदा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वैन वन बॉडी इज़ जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूव। कि जो बॉडी मूव करन लगती है बस उदों जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट सानूं नाम तो ही क्लीयर हो जाता है कि लिमिट उनकी एक लिमिट आ गई जी, मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट। तीसरा है जी काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैन वन बॉडी इज़ एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। जो मोशन शुरू हो गया, ठीक है, तो इसनूं काइनेटिक फ्रिक्शन असीं कहने आ, या इसनूं डायनामिक फ्रिक्शन भी कह दिंदे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन याद रखा जाए। एक ग्राफ प्लॉट किया जो सानूं बहुत वधिया तरीके समझाता है कि इस साइड ते असीं अप्लाइड फोर्स प्लॉट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस ते असीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल एफ, तो इस साइड ते स्मॉल एफ। ठीक है, पहला तो देखो जो अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो है। ठीक है, फिर जिमें जिमें अप्लाइड फोर्स बढ़ता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नाल नाल वध रहा देखो। ठीक है, तो दोनों बढ़ते हैं एक लिमिट तक। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बाद उस तो बाद साडा अप्लाइड फोर्स बढ़ता है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं होंगी। तो एक चीज़ होर तो बड़ी वधिया दिखाई गई है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। जो ये वैल्यू है जो तुहानूं शो हो रही है इट इज़ मोर दैन कनेटिक फ्रिक्शन। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन कनेटिक फ्रिक्शन, और वी कैन से kinetic friction is always less than limiting friction। ठीक है, इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कि वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स। किसनों सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहा जाता है? सैल्फ एडजस्टिंग मतलब जो अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो सानूं पता है जी स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। जो अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन भी जीरो है। जो अप्लाइड फोर्स इनक्रीज़ होंदा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इनक्रीज़ होंदा है। कित्थों तक इनक्रीज़ होंदा है? लिमिटिंग वैल्यू तक। ठीक है, तो इसलिए असीं इहनूं कहने हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है चेंज करता है, वो सैल्फ एडजस्टिंग है कि फोर्स के अकॉर्डिंग, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इहदा आंसर असीं की देवांगे बिकॉज इट्स वैल्यू चेंजिज विद अप्लाइड फोर्स। किस दी गल कर रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कि वैन अप्लाइड फोर्स इज जीरो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा इत्थे। When applied force is increased, static friction also increases accordingly। कित्थों तक बढ़ता है जी? कहना up to its limiting value called limiting friction। समझ लगी जी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, असीं इहनूं कवांगे। नैक्सट टॉपिक है जी लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वैसे तो जी देखो फ्रिक्शन के उस तरीके नाल लॉ स्टेट नहीं किए गए जिस तरह कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सैकेंड लॉ सीगे। कुछ जो असीं फ्रिक्शन के बेस्ड एक्सपैरीमेंट करते हैं तो उस ते बेस्ड असीं थोड़ा बहुत इन्हां लॉज नूं समझ सकते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ रफनेस।
कि दो बॉडीज़ दे विच जो फ्रिक्शन है वो किस चीज़ ते डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट जी कि सर्फेसिस असीं की यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की सर्फेसिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर स्टेट ऑफ रफनेस, स्टेट ऑफ रफनेस नाल इत्थे साडा मतलब फिर उही आंदा है कि उन्होंने दोनों बॉडीज़ दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का है, मतलब जो ज़्यादा समूथ होणगियां तो ज़्यादा क्लोज आउणगियां, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो फिर इनू तुसीं ओल्ड व्यू के हिसाब नाल नहीं समझना, हुण मॉडर्न व्यू के हिसाब नाल समझना है। फोर्सिस का जो ओरिजिन है इलैक्ट्रिकल है, अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स विच, ठीक है। जिवें इस ते बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तुहानूं कि वाई टायर्स ऑफ साइकिल आर मेड अप ऑफ रबड़, कि रबड़ के क्यों बने होंगे हैं, क्योंकि रदों की रबड़ घसदी भी है, तो वो स्टील के क्यों नहीं बना दिते जाते। तो उनका कारण यही है कि रबड़ ते अर्थ दे विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लैस है एज कंपेयर टू स्टील ते अर्थ। जे स्टील के टायर बनणगे अर्थ के उपर चलावांगे तो बहुत ज़्यादा जोर लगेगा, रबड़ के टायर ते अर्थ दे विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत घट है। तो नेचर ऑफ मटीरियल्स से डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा असीं स्टेट कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया इन कॉन्टैक्ट, कि दो सर्फेसिस का जिन्ना एरिया कॉन्टैक्ट दे विच है उनके ते डिपेंड नहीं करती है वैल्यू, ठीक है। किस ते डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन ते डिपेंड करती है। असीं ये भी दसदे हां तो वैल्यू किस ते डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन ते, एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन सेम। हुण ये नॉर्मल रिएक्शन है जी, देखो किस तरह डिपेंड करती है कि एरिया ते डिपेंड नहीं कर रही। देखो बॉडी नूं तुसीं इस तरह रख लो, भावें बॉडी नूं तुसीं ये वाला पासा नीचे कर दिओ जी, ठीक है, बॉडी का वेट उन्ना ही रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा, ठीक है ना। मैं तुहानूं इत्थे ड्रॉ करके दिखाना, देखो जी, भावें तुसीं बॉडी नूं जी इस तरीके नाल रख लो सरफेस ते, या तुसीं इस तरीके नाल रख लो, वही बॉडी है, असीं साइड चेंज करती तो उन्होंने दोनों का वेट सेम रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन भी सेम रहेगा, तो दोनों केसेस दे विच नॉर्मल रिएक्शन सेम है। तो दोनों के उपर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होएगा फोर्स अप्लाई करन ते, ठीक है, तो वो सेम होएगा। तो देखो इत्थे ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट दे विच है, इत्थे लैस एरिया कॉन्टैक्ट दे विच है, तो असीं कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया इन कॉन्टैक्ट। किस ते डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन दे, ठीक है। तो नेक्स्ट ला यही है जी कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इत्थे असीं एक कॉन्स्टेंट लगाने हैं जी, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, तो इसनूं कहंदे हैं जी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है जी। म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नूं असीं यूज़ करना सारे चैप्टर दे विच, हरेक न्यूमेरिकल दे विच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज़ होएगा, ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जो कॉन्स्टेंट लगता दैट इज म्यू, इसनूं कहंदे जी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो डायरेक्शन है जी लिमिटिंग फ्रिक्शन दी लास्ट है, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन इन विच बॉडी इज ऑन वर्ज ऑफ मूव, कि जिस डायरेक्शन दे विच बॉडी मूव करने की कोशिश करती है, सपोज करो कि बॉडी इस डायरेक्शन दे विच असीं फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी इस डायरेक्शन दे विच मूव करने की कोशिश करती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस मोशन दे जिस साइड ते मोशन मूव कर रही है बॉडी, जब मूव करने की कोशिश कर रही है तो उस दे ऑपोजिट होएगा जी, ठीक है। तो इत्थे ना साडे दिमाग दे विच कई बारी एक क्वेश्चन आंदा है जी कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन नूं अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है जी असीं सोचीए कि फ्रिक्शन मोशन नूं अपोज करता है, बट ध्यान नाल सोचो, मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिना, इसनूं समझण दी कोशिश करिया जी। कि सपोज करो जी कि ट्रेन है चल रही है, ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ठीक है। इहदे विच एक हैवी सूटकेस पिया जी, ट्रेन इस डायरेक्शन दे विच जा रही है, एक्सलरेट हो रही है, ठीक है। तो हुण जिहड़ा ये बॉक्स है तो नैचुरली है कि जो ट्रेन एक्सलरेट हो रही है तो इहदे उपर इस डायरेक्शन दे विच सूडो फोर्स लगेगा, जे इसका मास एम है तो एम ए, बट ये जो सूटकेस उस जगह ते ही पिया है तो इनू कौन रोक रहा है, तो इहदा मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस सरफेस। ये पिछे वाल जाने की कोशिश कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन दे विच है। इहदा मतलब जे ट्रेन दे नाल नाल जिवें ट्रेन चल रही है उहदे नाल नाल जे ये बॉक्स भी विच उस तरीके नाल चल रहा है
ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ, ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਾਕਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।